حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے سوال کیا، کہا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علم کے سمندر ہیں، مجھے ایک نہایت مشکل سوال کا جواب درکار ہے، کیا محبت میں زنا کرنا جائز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، بتائیں زنا کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھنے سے یعنی نظر دوڑانے سے اور خواہش پیدا ہونے سے۔ نظر کا غلط استعمال بدکاری کی کنجی ہے جس سے زنا کا دروازہ کھلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر کسی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو اسے فوری طور پر ہٹا دو اور دوبارہ نظر نہ دو، کیونکہ پہلی نظر تمہاری ہوتی ہے اور دوسری نظر شیطان کی ہوتی ہے۔ اسلام میں نظر بازی قطعی طور پر جائز نہیں، یہ شیطانی ہتھیار ہے جو انسان کی شرافت اور اخلاق کو نقصان پہنچاتا ہے اور شرمگاہ کو محفوظ نہیں رہنے دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آزاد مرد اور عورت تنہائی میں ملیں تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان موجود ہوتا ہے جو انہیں گناہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ جنسی تسکین کے لیے سیکس ویڈیوز دیکھنا، فحش رسائل پڑھنا، نائٹ کلب جانا یا مساج کے بہانے جانا، ان اعمال سے ایمان پر اثر پڑتا ہے، اور جو لوگ ان سے تسکین حاصل کرتے ہیں انہیں اپنے ایمان اور اخلاقی فکر پر توجہ دینی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو عورت اپنے شہر کے مکان کے علاوہ کسی اور جگہ اپنے کپڑے اتارتی ہے وہ اپنے اور اپنے رب کے تعلق کو نقصان پہنچاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی خوشی اور لذت ایسی جگہ حاصل کرے جو اس کے لیے جائز نہیں، یعنی زنا کرے۔ زنا کرنے والا شخص مومن نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غیرت مند انسان کبھی زنا نہیں کرتا، شریف آدمی کبھی بدکاری کو ظاہر نہیں کرتا۔ بدکاری معمولی گناہ نہیں بلکہ معاشرے کا سب سے سنگین جرم ہے۔ جہاں زنا ہوتا ہے وہاں فساد اور تباہی پھیلتی ہے۔ اسلام میں زنا کرنے والا انسان معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں، وہ سماج کی ناسور اور زہر قاتل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اتنا ذلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عرش کی سطح پر زندہ بھی گوارا نہیں کرتے۔ زنا کرنے والے کا مرتبہ اس قدر گرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں، بیٹی یا بیوی کے ساتھ بھی باعزت زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان اور زمین بھی شادی شدہ زناکار پر لعنت بھیجتی ہیں، اور جہنم میں اس کے شرمگاہ سے ایسی بدبو پھیلتی ہے کہ اہل جنت بھی اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس کے عذاب کے ساتھ اس کی رسوائی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک گروہ پر شدید عذاب ہو رہا تھا جو زنا کے مرتکب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یا جبرائیل، یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زناکاری کے کاموں میں مبتلا رہے ہیں۔ اسلام نے زنا کی سزا رجم یا سنگسار مقرر کی تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور یہ برائی دوبارہ سر نہ اٹھا سکے۔ غیر شادی شدہ زانی کے لیے کوڑے کا حکم ہے اور 1 سال ملک بدر کرنے کا حکم بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ کوئی تیرے ماں کے ساتھ زنا کرے؟ عرض کیا، نہیں چاہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماں کے ساتھ زنا کیا جائے؟ پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا لوگ اپنی بیٹی کے لیے بھی نہیں چاہتے؟ فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تیرے بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ عرض کیا، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح وہ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر عضو کا زنا میں حصہ ہوتا ہے۔ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ان کا زنا دیکھنا ہے۔ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، ان کا زنا پکڑنا ہے۔ پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، ان کا زنا چلنا ہے۔
मुंह भी जिना करता है, उनका जिना बौसा लेना है और दिल ख्वाहिश और तमन्ना करता है। हजरत मौलाना अब्दुल अजीज देहलवी के ज़माने में एक वाक़या है कि एक तालिब इल्म शाह साहब के मदरसे में पढ़ता था। मुगल सल्तनत के ज़वाल के आखिरी दौर में शाही खानदान की एक लड़की को यह खूबसूरत नौजवान पसंद आ गया। उसने मुलाजिम भेजकर नौजवान को बुलाया और उसके साथ मेल मिलाप करने की कोशिश की, लेकिन नौजवान ने खुदा से डरते हुए लड़की के वसवसों पर ध्यान ना दिया। लड़की इंतकाम पर उतर आई और धमकी दी कि अगर तुम मेरे साथ मेल मिलाप नहीं करोगे तो तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगी। नौजवान बहुत परेशान हुआ कि ईमान और अपनी जान के खतरे के दरमियान क्या करे। आखिरकार उसने फौरन बैतुल खला जाकर अपनी जरूरत पूरी की और अपने कपड़ों पर नजासत लगा ली ताकि लड़की के शरारती मंसूबे नाकाम हों। जब लड़की ने देखा तो सख्त नाराज हुई और घर से बाहर चली गई। नौजवान ने फिर कपड़ों को नहर में जाकर अच्छी तरह धोया और साफ किया। अगले दिन जब वो शाह साहब के हुजूर हाजिर हुआ तो शाह साहब ने पूछा, बेटा आज कौन सा इतर लगा कर आए हो? नौजवान दिल ही दिल में सोचता रहा कि शायद नजासत के असरात जिस्म में रची हुई हैं, लेकिन बोला कि मैंने अच्छी तरह धोया और साफ किया। मगर शाह जी उसे मुसलसल महक के बारे में पूछ रहे थे कि कौन सा इतर लगाया है कि पूरा कमरा खुशबू से भर गया है। शाह जी ने उसी वक्त तमाम तलबा को छुट्टी दे दी और नौजवान को तन्हा बिठाकर पूरी हकीकत सुनी। जब उसने अपना सारा वाकया सुनाया तो शाह जी ने कसम खाकर कहा, नौजवान, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी पाकीज़ा खुशबू कभी नहीं सूंघी। ये दुनिया का कोई इत्र नहीं बल्कि जन्नत की खुशबू है जो तेरे वजूद से आ रही है। अल्लाह ताला ने तेरे ईमान की हिफाजत फरमाई। तूने जवानी की उम्र में अपने आप को हरामकारी से बचाया। खुशनसीब है वो इंसान जिसका दामन जिना से आलूदा नहीं होता। दीन इस्लाम पाकीज़गी, हया और पाकदामनी की जिंदगी अपनाने की तालीम देता है। इस्लाम बेहयाई को कतन पसंद नहीं करता। हर दौर में कोई न कोई फितना मौजूद रहा है और आज के दौर का सबसे बड़ा फितना बेहयाई है। हमारी नौजवान नस्ल जो बैरून मुल्क परवान चढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता अरयानी और फहाशी की लपेट में आती जा रही है। नौजवान मजहबी और अखलाकी अनारकी के शौकीन बनते जा रहे हैं और अपनी मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं। कहा जाता है कि जिस कौम को तबाह करना हो उसके अखलाक को तबाह कर दो, उसमें बेहयाई आम कर दो, वो कौम खुद ब खुद अपनी मौत मर जाएगी। एक औरत का हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल भी इसी नौइयत का था। मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जो इल्म के समंदर और शेर खुदा कहलाते हैं, उस औरत ने जब उनकी खिदमत में आकर अर्ज किया कि या अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप शेर खुदा हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इल्म का दरवाजा करार दिया है। मैं आज आपकी खिदमत में एक सवाल लेकर आई हूं, बराह करम मुझे इसका जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे इसका जवाब बड़ी शुदा से दरकार है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, हकीकतन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का दरवाजा हूं, तो तुम पूछो जो भी तुम जानना चाहती हो, मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा ताकि तुम्हारी जिंदगी आसान हो सके। अब वो औरत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहती है, ए अली, मैं एक शख्स से बहुत मोहब्बत करती हूं और वो शख्स भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं उससे मोहब्बत सिर्फ अपनी रूह की तस्कीन के लिए करती हूं, लेकिन वो शख्स मुझे छूने की कोशिश करता है, अपने हाथ से मेरे जिस्म की तरफ बढ़ता है और अपनी नफसानी ख्वाहिशात का इजहार करता है। ए अली, मैं पूछ रही हूं, अगर वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा कर ले तो क्या ये जायज है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, ए औरत, मोहब्बत वो होती है जिसमें इंसान दूसरे इंसान की इज्जत करे, अदब करे। मोहब्बत में सबसे पहला काम यह है कि इज्जत की जाए। अगर कोई शख्स तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है तो वो तुम्हारी इज्जत करेगा, लेकिन अगर वो तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें मोहब्बत का कोई नामो निशान भी मौजूद नहीं। लिहाजा अगर तुम्हें लगता है कि ये मोहब्बत है तो तुम गलत हो। ये मोहब्बत नहीं बल्कि सरासर अपनी हवस को मिटाने का तरीका। मोहतरम नाज़रीन, असल मोहब्बत इंसान की जिंदगी के हौसले से पैदा होती है, जिसमें लम्हे भर के लिए ये एहसास हो कि कोई शख्स मुझसे सच्चा प्यार करता है, और उस चीज को सोचने से दिलो दिमाग रोशन हो जाता है और वो दुनिया की किसी और चीज से तवक्को नहीं रखता, क्योंकि वो चाहता है कि जिंदगी में जो चीज वो चाहता था वो उसे मुकम्मल तौर पर हासिल हो चुकी है और अब उसकी जिंदगी आसान और सहल हो गई है। अब हम आपको आज की इस वीडियो में जिना के बारे में इस्लामी अहकाम बताएंगे।
शादी से पहले अगर किसी बीवी ने जिना किया और शादी के बाद शौहर को इस बात का इल्म हो जाए तो इस सूरत में क्या करना चाहिए? एक आदमी ने बाजारी औरत से शादी कर ली। शादी से पहले वो मर्द उस औरत से नाजायज ताल्लुकात रखता रहा और अब उन्होंने निकाह कर लिया। कारी साहब फरमाते हैं कि जिससे जिना किया जाए उससे निकाह नहीं हो सकता। कारी साहब की ये बात दुरुस्त है, ऐसा निकाह हराम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में कि मोमिनों पर जानिया या जानी के साथ निकाह हराम है। हाफिज इब्न हकीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस मकाम पर जानी का जिक्र देना ज़ईफ और कमज़ोर लोगों के लिए इंतबाह है। अल्लाह ताला का फरमान है कि निकाह के लिए मर्द और औरत का पाक दामन होना ज़रूरी है। न वो अलानिया जिना करने वाली हो, न यारों वाली हो, न पकड़ी गई हो, न छुपे ताल्लुक रखने वाली हो। इस बात से ये वाज़ेह होता है कि निकाह के लिए दोनों का पाकीज़ा होना बहुत अहम शर्त है। मोहतरम नाजरीन, अगर कोई औरत किसी मर्द से जिना करे तो क्या उन दोनों का आपस में निकाह जायज़ होगा? और अगर शादी के बाद पता चले कि मियाँ बीवी में से किसी ने जिना किया था तो उनका निकाह किस तरह होगा? हमारे माशरे में अक्सर ये गलतफहमी पाई जाती है कि जिना करने वाले मर्द और औरत आपस में निकाह नहीं कर सकते, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। बिलाशबा जिना सबसे बड़ा गुनाह है, मगर इस गुनाह के बाद निकाह को मना करना दुरुस्त नहीं। अगर कोई शख्स इस जुर्म के बाद सच्चे दिल से तौबा करे तो उनका निकाह बिल्कुल जायज़ है। तफसील ये है कि जानिया औरत या जानी मर्द का निकाह उस वक्त तक सही नहीं जब तक वो सच्चे दिल से तौबा ना कर ले। अगर वो तौबा ना करे तो उनका निकाह जायज़ नहीं होगा। ये बात अक़्द निकाह के उसूल की तरफ इशारा करती है, यानी जानते हुए कि कोई औरत या मर्द बदकार है और तौबा नहीं की, उससे निकाह करना मोमिन मर्द या औरत के लिए हराम है। इसी तरह अपनी बेटी को किसी बदकार शख्स के साथ निकाह में देना जो ताइब न हो, मोमिन के लिए जायज़ नहीं है। पाक औरतें सिर्फ पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द सिर्फ पाक औरतों के लिए। अल्लाह ताला ने कुरान के दूसरे मकाम पर मर्द और औरत के निकाह के लिए दोनों के पाक दामन और बदकार न होने की शर्त रखी है। मोमिन औरतों में से सिर्फ पाक दामन औरतें और उन लोगों की पाक दामन औरतें जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई, उनसे निकाह जायज़ है बशर्ते कि तुम उन्हें उनका महर दे दो और वो बदकारी करने वाली या छुपी हुई ताल्लुकात रखने वाली न हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदकारी करने वाली औरत या बदकार मर्द से जो ताइब न हो, उनका निकाह हराम है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मरसद बिन अबी मरसद मक्का से लोगों को मदीना ले आया करता था। मक्का में एक बदकार औरत थी जिसका नाम उनाक था। मरसद बिन अबी मरसद ने वादा किया था कि वो उसे ले जाएगा। उनाक ने चांदनी रात में मक्का की एक दीवार के साथ बैठा हुआ मुझे देखा और मरसद के साथ पहुंच गई। मैंने कहा, अल्लाह ने जिना हराम कर दिया है। उसने आवाज दी, खैमे वालो, ये वो आदमी है जो तुम्हारे आदमी उठाकर ले जाते हैं। चुनाचे 8 आदमी मेरे पीछे लग गए। मैं मक्का की पहाड़ी में छुप गया, हत्ता के एक गार में दाखिल हुआ। वो लोग मेरे पीछे आए और मेरे सर के करीब खड़े हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे वहां से महफूज रखते हुए मदीना पहुंचा दिया। तो मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उनाक से निकाह करना चाहता हूं। मैंने ये बात 2 मर्तबा कही। पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और मुझे जवाब नहीं दिया। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरसद किसी जानिया या बदकार औरत से निकाह नहीं करता, इसलिए तुम उनाक से निकाह मत करना। इब्न कसीर में भी लिखा है कि किसी भी शख्स के लिए ऐसी औरत से निकाह करना जायज नहीं जिसने जिना किया हो, और ये मोमिन पर हराम है। जानी मर्द और जानी औरत से निकाह हराम है जब तक वो दोनों तौबा ना करें। इसी तरह जानी मर्द से भी जब वो तौबा ना करे निकाह जायज नहीं। लेकिन अगर जानी मर्द या जानी औरत सच्ची तौबा कर ले, अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो, तो उनका आपस में निकाह जायज है और किसी और के साथ भी निकाह जायज है। जैसे कोई मुशरिक या गैर मुस्लिम तौबा करे और मुसलमान हो जाए तो उसके लिए निकाह जायज है। जिसने तौबा की और ईमान लाया, नेक अमल किया, ये लोग हैं जिनकी बुराइयों को अल्लाह ताला नेक आमाल में बदल देगा, और अल्लाह हमेशा बहुत बख्शिशने वाला, बेहद रहम करने वाला है। नाजरीन, इस्लाम में जिना को सबसे बड़ा गुनाह और मुआशरती फसाद समझा गया है। जिना का मतलब है शादीशुदा या गैर शादीशुदा मर्द या औरत के लिए गैर कानूनी जिनसी ताल्लुक कायम करना। अगर कोई शख्स अपनी बीवी या शौहर के अलावा किसी और के साथ जिनसी ताल्लुक रखे तो ये जिना है। गैर शादीशुदा अफराद के लिए भी गैर कानूनी जिनसी ताल्लुक जिना में आता है।
شادی شدہ افراد کے لیے زنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن و سنت میں اس کی سخت ترین سزا مقرر ہے تاکہ لوگ اس سے باز رہیں اور معاشرے میں اخلاقی تباہی نہ پھیلے۔ شادی شدہ افراد کے لیے زنا کرنے والے مرد اور عورت دونوں کے لیے سزا رجم یعنی سنگسار ہے، اگر 4 عادل گواہ موجود ہوں جو یہ ثابت کریں کہ زنا واضح طور پر ہوا ہے۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے زنا کی سزا کوڑے ہیں۔ قرآن اور سنت میں واضح کیا گیا ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اس کا مقصد لوگوں میں عبرت پیدا کرنا اور معاشرتی فساد کو روکنا ہے۔ اگر کسی مرد یا عورت نے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد زنا کیا ہو تو نکاح کے حوالے سے کچھ اصول ہیں۔ زانی یا زانیہ سے نکاح صرف اس صورت میں جائز ہے جب وہ سچے دل سے توبہ کر لے اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہو۔ توبہ کرنے والا مومن بن جائے اور نیک عمل اختیار کرے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے تو ان سے نکاح کرنا مومن پر حرام ہے۔ لیکن اگر زانی مرد یا زانی عورت سچی توبہ کر لے تو ان کا آپس میں نکاح اور کسی پاک انسان کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے۔ زنا انسان کی روحانی حالت کو نقصان پہنچاتا ہے اور ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ یہ معاشرت میں فساد اور بے ایمانی کو فروغ دیتا ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ نہ صرف ذاتی گناہ ہے بلکہ معاشرتی تباہی کا سبب بھی بنتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ زانی اور زانیہ دونوں اپنی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں اور ان کی رسوائی عام کی جائے گی۔ اسلام میں زنا روکنے کے تدابیر بھی بتائی گئی ہیں۔ مرد و عورت کے لیے نگاہ کی حفاظت فرض ہے۔ اچانک کسی پر نگاہ ڈالنا اور ہوس کی خواہش رکھنا زنا کی شروعات ہے۔ تنہائی میں آزاد مرد اور عورت کے اکٹھے رہنے سے گریز کریں کیونکہ شیطان اس موقع پر گناہ کی طرف راغب کرتا ہے۔ حیا، شرم و عفت اور پاکیزگی کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ شادی شدہ افراد اپنے بیوی یا شوہر کی عزت اور حقوق کا خیال رکھیں۔ سورہ نور میں غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے 100 کوڑے کی سزا بیان کی گئی ہے۔ شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے رجم یعنی سنگسار کی سزا بیان ہوئی ہے۔ حدیث میں بیان ہوا کہ آسمان اور زمین بھی زنا کرنے والے پر لعنت کرتی ہیں اور ان کے اعمال اور عذاب کو دیکھتی ہیں۔ زنا کے مرتکب کو معاشرتی سطح پر بھی رسوا اور داغدار کیا جاتا ہے تاکہ عبرت حاصل ہو اور معاشرہ محفوظ رہے۔ اسلام میں زنا کو نہایت سختی سے منع کیا گیا ہے، چاہے مرد شادی شدہ ہو یا کنوارا، عورت شادی شدہ ہو یا کنواری۔ اس کے لیے واضح حدود اور سزا مقرر کی گئی ہیں تاکہ انسان اپنی حیا اور پاکیزگی کو برقرار رکھے اور معاشرت میں فساد نہ پھیلے۔ توبہ اور اصلاح کے بعد زنا کرنے والے کے لیے نکاح جائز ہے، لیکن توبہ نہ کرنے والے کے لیے ہر صورت میں نکاح حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک عورت کے ساتھ زنا کا واقعہ پیش آیا۔ عورت نے زنا کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنی ندامت اور شرمندگی کے اظہار کے لیے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے گناہ کیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اس کے جرم پر پکڑیں اور سزا دیں تاکہ میں اپنے گناہ کی معافی پا سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت صبر اور حیا کے ساتھ یہ بیان کرو کہ تم نے کیا کیا اور تمہارا دل کیا چاہتا ہے۔ عورت نے اعتراف کیا کہ میں نے زنا کیا اور اس کے بیک میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نرمی اور حکمت کے ساتھ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد وسیع ہے اور سچا توبہ کرنے والا ہمیشہ بخشا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سچی ندامت اور توبہ کے ساتھ اپنے گناہ کی طرف لوٹے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے اور اسے سزا دینے کا مقصد صرف لوگوں کو عبرت دینا اور معاشرتی فساد روکنا ہے۔ اس عورت کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنی زندگی میں پاک دامنی اور حیا اختیار کرے اور دوبارہ ایسے گناہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تاکید کی کہ زنا ایک عظیم گناہ ہے اور اس کے اثرات انسان کی روح اور معاشرت پر گہرے نقصان دہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کرنے والا ہے بشرطے کہ انسان سچی توبہ کرے۔ اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اور انہوں نے عورت کو نصیحت کی کہ محبت اور تعلقات میں عزت اور ادب سب سے پہلے لازمی ہے۔ کسی بھی تعلق میں اگر انسان دوسروں کے حقوق پامال کرے تو یہ محبت نہیں بلکہ ہوس اور نفسانی خواہش کا اظہار ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام موجود لوگوں کو یہ درس دیا کہ زنا نہ صرف فرد کا گناہ ہے بلکہ معاشرت میں فساد اور رسوائی کا سبب بھی بنتا ہے، اور ہر مومن پر فرض ہے کہ وہ اپنی نگاہ، دل
اور आज़ा की हिफाजत करे ताकि इस तरह के गुनाह से बचा जा सके। और इस औरत की तौबा और नदामत के जरिए लोगों को ये सबक मिले कि अल्लाह ताला की रहमत वसी है, और जो शख्स सच्चे दिल से माफ़ी मांगे और अपनी जिंदगी को दुरुस्त रास्ते पर ले आए तो अल्लाह ताला उसकी बुराइयों को नेक आमाल में बदल देता है। नाजरीन, अब हम आपको अजीम सहाबी रसूल हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में बताएंगे। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम कबूल करने से पहले मक्का के सख्त मुखालिफीन में से थे, और वो न सिर्फ इस्लाम के खिलाफ थे बल्कि मुसलमानों पर सख्त जुल्म करते और उन्हें परेशान करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक मजबूत और जरी शख्सियत के मालिक थे। उनके दिल में इस्लाम के खिलाफ शदीद गुस्सा और सख्त रवैया था। वो मुसलमानों के घरों और इज्तिमाआत में खलल डालते और उन्हें खौफजदा करते। एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने आप को कुरान मजीद के कुछ आयात सुनने के लिए कुरान की तरफ रुजू किया। उनके भतीजे ने उनको बताया कि हज़रत फातिमा और दीगर मुसलमानों ने कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया है। हज़रत उमर ने इस आयात को सुनना चाहा, और जब उन्होंने कुरान की कुछ आयात सुनी तो उनके दिल में अल्लाह ताला की अज़मत और कलाम की हक़ानियत ने असर किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दिल में ईमान की रोशनी पैदा हुई, और उन्होंने गौर किया कि ये जो अल्लाह ताला की किताब है इसमें इंसानियत के लिए हिदायत और हक़ायक़ बयान किए गए हैं। हज़रत उमर ने इसके बाद फैसला किया कि वो अपने दिल की आवाज़ पर अमल करेंगे और इस्लाम कबूल करेंगे। उसने अपने करीबी दोस्त और रिश्तेदारों के सामने ऐलान किया कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूं। हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों के दिलों में जुर्रत और एतमाद पैदा हुआ, क्योंकि वो एक मजबूत, बहादुर और बुलंद मर्तबा इंसान थे। उनके इस्लाम कबूल करने से इस्लाम के मुखालिफीन भी चूक गए, और उन्हें अंदाजा हुआ कि अब इस्लाम के खिलाफ मुखालिफत मुश्किल हो गई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सिर्फ ईमान कबूल किया बल्कि अपनी ताकत, शुजाअत और हिकमत के साथ इस्लाम के लिए खिदमत शुरू कर दी। उन्होंने मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया और अल्लाह के रास्ते में अपनी जान और वसाइल को वक्फ कर दिया। हज़रत उमर की शख्सियत में सब्र, अदल और ईमान की कुव्वत पैदा हुई, और उन्होंने अपने इक़्तिदार और ताकत को अल्लाह के दीन के क़याम और मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल किया। यूं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इस्लाम कबूल करना न सिर्फ उनके ज़ाती रूहानी सफ़र का हिस्सा था, बल्कि उस वक्त के मुसलमानों के लिए एक अजीम खुशी और कुव्वत का सबब भी बना। उनके ईमान ने इस्लाम के पैगाम को मजबूती से फैलाने में मदद की और मुसलमानों को दुश्मनों के सामने मजबूती से खड़ा होने का हौसला दिया। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह ताला के दीन की खिदमत और उम्मत मुस्लिमा की फलाह के लिए वक्फ कर दिया। उनका इस्लाम कबूल करना न सिर्फ एक ज़ाती रूहानी तब्दीली थी, बल्कि उसके बाद उन्होंने अपनी ताकत, शुजाअत और अदल के जरिए इस्लाम के लिए बेपनाह खिदमत अंजाम दी। हमें चाहिए कि अपनी निगाह, दिल और आज़ा की हिफाजत करें, हकीकी मोहब्बत में हमेशा इज्जत और अदब को मुकद्दम रखें, नफसानी ख्वाहिशात की तकमील को मोहब्बत के नाम पर जायज़ न समझें, मुआशरत में अदल, इंसाफ और अखलाक कायम करें, अपने दिलो दिमाग को पाकीज़ा रखें, हया और पाकदामनी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, और हर अमल में अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने की कोशिश करें, ताकि न सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी में फलाह और नेकी हासिल करें बल्कि अपने मुआशरे के लिए भी एक मुस्बत मिसाल कायम करें और हमेशा अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत के तालिब रहें।